Namaste everybody. This is Sarvesh Sharma. How are you? I hope you will be fine and doing well at your homes. Dear students, in our previous classes, we have read a poem penned by Thomas Gray named Elegy, written in country churchyard. I mean to say, we are reading the poem Elegy written in country churchyard, penned by Thomas Gray. In our previous classes, we have read some stanzas, and we read that the poet Thomas Gray, mounts on the death of the ancestors, rude forefathers who died in obscurity. We have read that the poet, sitting in the country churchyard under the shapeless tree, thinks about the life journey of the ancestors, forefathers of the village. In some stanzas, the poet Thomas Gray creates a solemn environment, calmness and silence of the graveyard or churchyard. Poet Thomas Gray presents a pictorial description of the evening at the rural areas, while he says that sun is setting, farmers are returning from their daily works. Further, he creates an environment of calmness, a serious environment, saying that presenting and saying some pictures just like all mopping oil, all, when he says that there is a great calmness all around, and even the presence of poet interrupts, disturbs the seriousness of the all. In previous classes, we have read that sometimes some actions interrupts the long silence, just like beetle droning flight. When beetle hovers here and there, it breaks the silence. अब तक की जो पोएम थी उसके बारे में मैं अभी आपसे बातें कर रहा था. आगे की जो पोएम है, हम एलेजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड कर रहे हैं. आगे की जो पोएम है उसमें जो पोइट है थॉमस ग्रे, वो क्या कहना चाहता है. नेक्स्ट 4 लाइन्स आर हियर. आपने समझे, पिछली लाइन्स में समझता हूँ आपकी समझ में आई होंगी. आगे की जो 4 लाइन्स हैं, तरीका हमारा वही रहेगा. पहले थोड़ा वर्ड मीनिंग देखें, उसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे और फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. देखिए, beneath those rust elms that ye tree shade. हमने जो प्रीवियस लाइन पढ़ी थी, molest her ancient solitary reign.
यानी डिस्टर्ब करता है उसके प्राचीन और बहुत पुराने एकाकी साम्राज्य को। उससे आगे की ये लाइन्स हैं, हम 4 लाइन एक बार में ले लेते हैं। देखें बीनीथ, एक एक वर्ड देखें। बीनीथ मीन्स अंडर, यू कैन से बिलो। दोज, मैंने अभी कहा था सिटिंग इन द सिटिंग अंडर द शेपलेस ट्रीज इन अ कंट्री चर्च यार्ड। दोज क्या है? रेफर्स टू द ट्रीज। यहां पर दोज का प्रयोग उन पेड़ों के लिए हुआ है, आगे लिखा भी है। रज, रज मीन्स ओल्ड एंड रफ। रज मीन्स old and rough. Elms, a kind of tree, a kind of tree, एक प्रकार का पेड़ है। Yew, this is also a kind of tree, ये भी एक प्रकार का पेड़ है। Trees said, beneath those rushed elms that you trees said, where heaps, heaps means rises, increases, the turf, turf means a grass, in many mouldering heap. Mouldering heap means decaying heap. Each in the his narrow cell. Here narrow cell means grave. For ever lad, ever lad, eternal peace. I mean to say lying dead. The rude, rude means simple, rustic, you can say rustic or uncivilized. Forefathers, ancestors of the hamlet, a small village. These are the difficult words of this poem. अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। Beneath those rushed elms that eat yew tree said, उन पेड़ों के नीचे जो कठोर हैं और पुराने हैं। रस्ट, एल्म्स, एल्म्स के पेड़, एल्म्स के पेड़ जो बहुत कठोर हैं, उबड़ खाबड़ हैं, रफ हैं, खुरदरे हैं, बहुत पुराने समय के हैं, उन पेड़ों के नीचे। एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें। उन पेड़ों के नीचे, दैट यू ट्री सेड, और ये भी पेड़ है, ये काइंड ऑफ ट्री है। यू पेड़ों के नीचे, उसकी छाया के नीचे, साइड में छाया। एल्म्स खुरदरे, उबड़ खाबड़, पुराने एल्म्स एवं यू पेड़ों की छायाओं के नीचे। फर्स्ट लाइन, वेयर हीव्स द टर्फ, यहां देखिए, वेयर हीव्स द टर्फ, जहां बढ़ती है घास। ये थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ये कॉमन नहीं है, स्ट्रेंज स्ट्रक्चर है ये टर्फ। सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब पहले है। जैसे ऑन द टॉप ऑफ द हिल, इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट, हर्मिट लिव्स ए हर्मिट। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट, हर्मिट, हर्मिट से पहले वर्ब आ गई। इसी तरह यहां पर वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर दिया गया है। असामान्य स्ट्रक्चर होते हैं ये, ग्रामर के अंदर पढ़ाए जाते हैं। वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी मॉडरिंग हीप, जहां पर घास उगती है, घास बढ़ती है, इन मैनी मॉडरिंग हीप। मॉडरिंग हीप का मतलब है टॉटरिंग हीप,
ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी पर जो बड़े बड़े टीले हैं वो डिकेइंग, पतन होते हुए जो टीले हैं उनके ऊपर जो घास होती है उनमें वो हैं। यानी कि पृथ्वी पर पतित होते हुए, खंडित होते हुए, टॉटरिंग, नष्ट होते हुए जो हीप हैं, जो हीप है, हीप में से उठा हुआ भाग, ढेर, उनके ऊपर उगती हुई घास में, वेयर हीप्स द टफ इन द मैनी मॉल्डरिंग हीप, जहां बहुत से उठे हुए बड़े बड़े जो हीप हैं, ढेर हैं, उन पर उगती हुई घास पर वे लेटे हुए हैं। ईच इन हिज नैरो सेल, आगे भाव है इसका, ईच मीन्स प्रत्येक, कौन प्रत्येक, ईच पर्सन ऑफ द विलेज, यानी कि गांव का वो प्रत्येक व्यक्ति जो मर चुका है। ईच इन हिज नैरो सेल, नैरो सेल मीन्स ग्रेव। देखो सेल मीन्स जेल भी होता है, नैरो मीन्स संकीर्ण होता है, नैरो सेल मीन्स सकड़ी जेल या सकड़ा कमरा, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है ग्रेव लिटरेचर में। ईच इन हिज नैरो सेल, उनमें से प्रत्येक जो व्यक्ति है वो उसमें पड़ा हुआ है। फॉर एवर लेड, इटर्नल पीस में सोया हुआ है, हमेशा की शांति में वो सोया हुआ है। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, आगे भाव है इसका, द रूड फोर फादर्स, जो बेचारे सादा हैं, एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, सादा सिंपल लोग हैं, रस्टिक हैं, ऑफ द हेमलेट, हेमलेट कहते हैं स्मॉल विलेज, हमारे यहाँ आसपास जैसे पुरा कहते हैं, जैसे गांव होता है, पुरा होता है, ढांडी होती है, तो पुरा जो होता है वो हेमलेट कहलाता है। यानी कि इस छोटे गांव के जो फोर फादर्स हैं, सीधे साधे जो पितामह हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो इस सकड़ी ग्रेव में हमेशा के लिए सोए हुए हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति हमेशा के लिए सोया हुआ है। और ये ग्रेव्स कहाँ हैं? ये ग्रेव्स हैं पतित होते हुए ऊंचे ऊंचे टीलों, जहां पर घास उगी हुई है, यानी घास के नीचे ये लोग, इनके जो ग्रेव्स हैं वो दबे हुए हैं। Beneath those rust album that ye trees shades, और ये जो है दबी हुई जो है ये कहां पर हैं? ये उबड़ खावड़ एल्म्स और यू ट्रीज के पेड़ों की छाया के नीचे है। एक बार फिर से देख लो, Beneath those rust album that ye trees shade, एल्म्स उबड़ खावड़ और पुराने एल्म्स ट्रीज और यू ट्री की छाया के नीचे, where he heaves the turf in many mouldering heap, बहुत से उठे हुए, पतित होते हुए, नष्ट होते हुए जो हीप है, ढेर है, उनके ऊपर जो घास उगी हुई है, घास उनके ऊपर बढ़ रही है, उनके नीचे each in his narrow cell forever laid, हमेशा के लिए सकड़ी ग्रेव में, उनकी ग्रेव में, चर्च यार्ड में, ग्रेव में वो लेटे हुए हैं। कौन लेटे हुए हैं? द रूड फोर फादर ऑफ द हेमलेट स्लीप, इस छोटे से गांव के जो लोग हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो लेटे हुए हैं। छोटे से गांव के जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो हमेशा के लिए अपनी अमर नींद में सकड़ी जो उनकी ग्रेव है उसमें लेटे हुए हैं। और ये जो ग्रेव हैं ये पतित होते हुए, नष्ट होते हुए जो मिट्टी के ढेर हैं, जिनके ऊपर घास उग गई है, उनके नीचे हैं। और ये जो सारी चीजें हैं ये एम्स और यू ट्रीज के नीचे हैं। ओके, देखिए इसका हिंदी अनुवाद था। डिस्क्राइबिंग, अब इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखें। डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ द ग्रेवयार्ड, the poet Thomas Gray says that the rude forefather, the simple ancestor of the village are lying dead, and they are enjoying their eternal peace in the graves under the elms and yew trees shade. On the grave their grass is growing under the tree, and they are completely covered with the grass. Okay, इस प्रकार से आपके 4 लाइन्स होते हैं। नेक्स्ट 4 लाइन्स देखते हैं। आइए नेक्स्ट 4 लाइन्स देखें।
देखिए नेक्स्ट 4 लाइंस, दीज आर नेक्स्ट 4 लाइंस। द ब्रीजी कॉल, सबसे पहले वर्ड्स देखेंगे वन बाय वन, दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न। ब्रीजी मीन्स हियर प्लीजेंट, सुहावना। कॉल मीन्स हियर सम्मान, बुलाना। ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग, इट्स मीन्स फ्रेग्रेंट एंड फ्रेश। मॉर्न, मॉर्निंग। The swallow, a kind of bird. Twittering means chirping. From the straw-built shed, घास फूस से बना हुआ सैड है। कॉक यू नो, श्रिल मीन्स हार्स, कर्कश, कठोर। क्लैरियन, क्लैरियन मीन्स बांग होता है, बांग, मुर्गा जो बांग मारता है उसको कहते हैं। और द इकोइंग हॉर्न, तेज आवाज। नो मोर शैल रोज देम फॉर देयर लॉली बेड। लॉ इन स्टेटस। देख, दीज आर नेक्स्ट 4 लाइन्स। हम 4 लाइन्स का स्टैंजा हर बार में लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग माउथ। ब्रीजी कॉल, इसको देखो यहां से यहां उठा के लाइए। ब्रीजी, इसको मॉर्निंग पे ले आइए, यानी प्रभात की खुशनुमा, खुशबूदार और फ्रेश। देखो ब्रीज का मतलब क्या होता है, ब्रीज मीन्स होता है प्लीजेंट विंड, यानी कि खुशनुमा, खुशबूदार और ताजा प्रभात की हवा। क्या अर्थ हुआ इसका? द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, प्रभात की ताजा, खुशनुमा, सुखद, प्रसन्नता प्रदान कर देने वाली खुशबूदार हवा। द swallow twittering from the straw built side, शैलो अबाबिल होता है ये, शैलो एक पक्षी, एक काइंड ऑफ बर्ड होता है। द swallow twittering, twittering chirping, यानी swallow पक्षी की चहक। from the straw built side, straw built side made of straw, nest made of straw, यानी कि अवाबिल के सैलो के रहने का घास फूस से निर्मित स्थान या घोंसला। उसका जो स्ट्रो मीन्स घास फूस, बिल्ट मीन्स निर्मित, पास्ट पार्टिसिपल है। सैलो, स्ट्रो, विल्ट, सैड, घास फूस से निर्मित रहने का स्थान, उसका घोंसला, उसका रहने का स्थान। द swallow twittering from the straw built shed, घास फूस से निर्मित अपने स्थान से swallow पक्षी की चहचहाट हुई। अब नीचे जाके अर्थ निकलेगा, ऊपर कोई अर्थ नहीं निकला। द cock shrill clarion और द echoing horn, द cock shrill, मुर्गे की तीखी बांग, जो सुबह सुबह पहले बोलता है इन द मॉर्निंग, वेकअप साउंड ऑफ द कॉक। कॉक श्रिल क्लैरियन, मुर्गे की तीखी बांग, हार्स। और द इकोइंग हॉर्न, तेज आवाज में बजने वाले हॉर्न। यहां पर तुम इसे सहनाई समझ सकते हो। नो मोर सेल राउज देम, ये ऊपर लिखी हुई तीनों 3 पॉइंट्स कौन कौन से? प्रभात की खुशनुमा, सुखद विंड, हवा, स्वैलो पक्षी का अपने
स्ट्रो विल्ट सैड से चहचाना, और मुर्गे की तीखी बांग और इकोइंग हॉर्न, ये तीनों भी नो मोर सेल राउज देम, ये तीनों भी सेल राउज देम, उन्हें खड़ा नहीं कर सकते हैं, दोबारा से जीवित नहीं कर सकते हैं, कब्र में से नहीं निकाल सकते हैं। दे आर लॉली बैड, उनके लॉली बैड से, लॉली का मतलब होता है लॉ इन स्टेटस। अब जो कब्र होती है वो जमीन से थोड़ी नीचे ही होती है, इसलिए लॉली बेड कहा गया है। ये तीनों मिलकर भी इसको लॉली बेड से मृत फोर फादर्स को उठा नहीं सकती। एक बार फिर से देख लो। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, प्रभात की खुशनुमा खुशबूदार मन को पसंद आने वाली हवा। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द एस्ट्रोविल्ड साइड, घास फूस से बने अपने घोंसले से, अपने रहने के स्थान से स्वेलो पक्षी की चहचाहट, मुर्गे की तीखी बांग और द इकोइंग हॉर्न, और तेज आवाज में बजते हुए हॉर्न, शहनाई वगैरह, ये सब मिलकर भी उन्हें अपने जो चिर परिचित शांति है, पीस है, इटर्नल, उससे मृत्यु में गए हुए फोरफादर्स को उसकी ग्रेव से बाहर नहीं ला सकती है, उन्हें नहीं जगा सकती। इन दीज लाइन्स पोएट describe the eternity of the death. Poet says that no efforts can get them out from the grave. He presents his ideas that the wind, having fragrance and freshness, pleasantness, cannot awake them. And further he says that the chirping of the birds like swallow and the clarion sound, harsh clarion sound of the clock, even the echoing sound of anything cannot awake them. They are enjoying eternal peace, i.e., they are in the grave. The poet wants to emphasize on the eternity of the death. He says that no efforts can make them alive. Okay, these are your 4 lines with English explanation. Next 4 lines देखते हैं। Let's start. देखिए next 4 lines देखते हैं। देखो these are your another 4 lines. Let's start. For them means the dead forefathers. For them, no more, never, here. The blazing hearth means stove, shall burn means lit, blazing, burning, or busy housewives ply her evening care. No children run to lisp. Lisp means speak in broken tongue or accent. Their sires means fathers, return, come back to climb his knees, the envied, jealous. Kiss to share. For them no more the blazing hearth shall burn. उनके लिए
किनके लिए? मृत फोरफादर्स के लिए। नो मोर ब्लेजिंग हर्थ, अब कोई और चूल्हा नहीं जलाया जाएगा। सेल बर्न, उनके लिए अब कोई और चूल्हा नहीं जलाया जाएगा। एक का इसका सामान्य अर्थ है। दूसरा अर्थ इसका यह है कि जो मरे हुए लोग हैं वो वापस नहीं आएंगे चलते हुए चूल्हे का आनंद लेने के लिए। ओके। और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और जो व्यस्त गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो जो कार्य अपने पति को प्रसन्न करने के लिए करती थी वो कार्य अब नहीं करेंगी, क्योंकि पति तो उनके मर चुके हैं, है ही नहीं। और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, जो शाम को जब थके हारे मादे जब उनके पति आते थे लौटकर खेतों से, तो उनको खुश करने के लिए, उन्हें आराम कंफर्टेबल प्रोवाइड करने के लिए जो वो परिश्रम करती थी, कार्य करती थी, वर्क्स करती थी, वो कार्य अब वो नहीं करेंगी। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सेल्व्स रिटर्न, नो चिल्ड्रन रन, कोई भी बच्चा नहीं दौड़ेगा। टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न, टू लिस्प, अपनी टूटी फूटी तुतलाती हुई आवाज में बोलता हुआ, बोलने के लिए, देयर सायर्स रिटर्न, उनके पिता के वापस आने पर। पिता जब घर शाम को वापस आते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, तो दौड़कर बच्चे उनके पास भागते हैं। तो अपनी तुतलाती जवान में कुछ भी बोलने के लिए अब कोई बच्चा अपने पिता के वापस आने पर उधर नहीं दौड़ेगा। क्यों नहीं दौड़ेगा? क्योंकि पिता तो पहले ही जा चुके हैं, पिता है ही नहीं। और क्लाइम हिज नीज, बच्चों की आदत होती है कि दौड़कर भागकर जाते हैं और पिता के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इस लाइन का क्या सेंस है देखो। और क्लाइम हिज नीज, और ना ही कोई बच्चा उनके घुटनों पर चढ़ेगा। हिज फादर, कौन सा किसका पिता है? जो बच्चा दौड़ करके अपनी टूटी फूटी आवाज में अपने पिता की वापसी पर उसके पास दौड़ कर जाता है। और क्लाइम हिज नीज, ना ही कोई बच्चा उनके घुटनों पर चढ़ेगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लटक जाते हैं, घुटनों पर चढ़ जाते हैं, उस जगह का सेंस है, सीन क्रिएट किया है लेखक ने, पोएट ने। द एनवीड किस टू शेयर, बहुत अच्छा भावार्थ है इसमें। और क्लाइम हिज नीज, ना ही उसके घुटनों पर चढ़ेगा। द एनवीड किस टू शेयर, किस करने के लिए जिसकी शेयर ना करने की वजह से दूसरा ईर्ष्यालु है। इस लाइन का क्या भाव है? इस लाइन का ये अर्थ है कि कोई बच्चा दौड़कर नहीं जाएगा। जैसे किसी घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा दौड़कर गया, वो पिता से लटक गया, उसको किस किया, तो दूसरा बच्चा उससे जेलसी करेगा। तो अब कोई बच्चा घुटनों पर नहीं चढ़ेगा, ना ही ऐसी किस करेगा जिससे उसका दूसरा जो है उसके लिए कोई ईर्ष्या होगी। एक बार फिर से देख लें। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, उन लोगों के लिए अब कोई चूल्हा नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि वो उस चूल्हे का आनंद लेने के लिए वापस नहीं आएंगे। दे विल नॉट कम बैक टू एंजॉय। और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और जो पत्नियां हैं अपने पति को कंफर्ट देने की इच्छा से जो कार्य करती थी उनके घर वापसी पर, वो कार्य अब वो नहीं करेंगी, वो काम उन्हें करना नहीं पड़ेगा। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न, और कोई भी बच्चा नहीं दौड़कर जाएगा अपने पिता के घर वापसी पर आने पर, जो तुतला कर बोलते थे, कोई भी तुतला कर बोलने वाला बच्चा अपने पिता के घर वापसी पर लौटकर नहीं जाएगा। और क्लाइम हिज नीज, और कोई भी बच्चा नहीं चढ़ेगा घुटनों पर। द एनविड किस टू शेयर, जिससे कि वो किस करे और दूसरे को उससे ईर्षा हो। ऐसा किस करने के लिए कोई भी बच्चा नहीं चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि वो सारे लोग मर चुके हैं। देखिए इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोएट डिस्क्राइब द इटर्नल ट्रुथ ऑफ द डेथ। द पोएट थॉमस ग्रे सेज दैट the poet Thomas Gray says that from now, because of their death, no stove will be fired, no stove, no hearth blazing, there is no more blazing hearth, because the dead will not come back to enjoy the heat of the earth.
hearth, and no wife will works to comfort their tired husbands. As the tired husbands comes to the housewife giving up their household work, they attempt to comfort her husband with many ways. And from now, because of the death of their husbands, they will have not to work there. No children ran to list their sides return. And in the second phase, poet says that there will be no child who comes and speak in a broken tongue to the pleasant feeling for the fathers. And no child will climb up on the knees and will not get a kiss, so that another one get jealousy because of their death. Because their father and forefather are no more in the world, so why their wife have to work for their comfort? Why they lit the hearth for their comfort? Why the children run to make a pleasant feeling in his or her broken tongue? And no child will try to climb on the knees of their father, so that another one can get envy or jealousy. This is the explanation of these 4 lines. इसके बाद ये जो पोएम्स हैं, हम इनमें से, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देते हैं कि हम जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन बनेंगे, उनको आपको पूरी तरह से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल नोट्स के माध्यम से कराएंगे। ये सिर्फ आपके थोड़े से अंडरस्टैंडिंग को ग्रो करने के लिए इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं। ओके, इससे आगे की क्लास हमारी कल होगी, यानी कहने का मतलब है अगली क्लास में हम इससे, क्योंकि ये पोएम बहुत बड़ी है तो इसे टुकड़ों में ही पढ़ना पड़ेगा, एक साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, इतनी लंबी पोएम है। तो अगली जो लाइन्स होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप लर्निंग एट होम विद अस। थैंक यू, गुड बाय।